Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the discussion related to salary planning, budgeting and control. First of all, we are looking at the reasons of wage increase. And there are three reasons identified on this particular slide. Number one, to stay competitive. कि जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो उस इंडस्ट्री में you should be the employer of the choice and the employees would prefer, or employees rather should prefer, to work for your organization, and so that you can also have a good market repute. So to be competitive, you may go for increasing in the wages and salaries. Number two, to keep up with the cost of living increases. As you all know, inflation is always there. Commodity की prices वो बढ़ रही हैं, cost of living वो increase कर रही है. तो cost of living के साथ अपने आप को match करने के लिए you need to go for increase in wage and salary. And the third aspect जिसकी वजह से हम wage increase की बात कर सकते हैं, that would be to reward performance. Now, there are different types of wage increase. It can be the base pay, which means increase in base pay becomes a fixed cost. It can only be reduced in the future by laying off or by cutting employees' pay, and obviously neither of which are desirable options. Okay, so generally base pay के अंदर increase वो relatively कम किया जाता है, जिसके बरक्स the option we have is the variable pay, and it is said that variable pay consists of the bonuses and other incentives. These are high when the organization is doing well and low or non-existent when the organization does poorly. इसके अलावा जिस चीज में तब्दीली आ सकती है, that is benefits, and it is said that employees always cost more than their cash compensation because of the benefits cost, and new benefits once granted become fixed cost. We have to bear that in mind कि हम कोई भी benefit अगर allocate कर रहे हैं तो that would become a permanent cost structure for the organization. So this has led many organizations to rely on temporary, part-time or outsourced employees. तो obviously cost cutting करने के लिए फिर organization के पास जो options बाकी बचती हैं, that would be कि they can go for temporary, part-time or outsourced employees, जिनके साथ फिर उनको benefits के ऊपर negotiate ज़्यादा नहीं करना पड़ता और उनकी salary increase के बारे में भी ज़्यादा debate वो नहीं होती. So there are certain budgeting aspects for salary increases. For example, the first concern is that how much total should be paid out. So that would be dependent upon, number one, wage history, number two, ability to pay, and number three, labor costs. And when we talk about labor costs, that may include the costs associated with the core employees. Then there are certain contingent workforce working for the organization, and obviously there would be the people who are being outsourced, so they are going to be as a cost center. So a prospective wage increase may or may not increase labor cost per unit. Okay, so you have to see कि आप अपनी overall cost को working efficiencies के साथ कैसे associate कर रहे हो, आप competitive कैसे रहना चाहते हो, आपके पास budgetary limits कितनी हैं जिनको मद्देनजर रखकर आपने obviously किसी increase की बात वो करनी है. So हमारे पास budgetary concerns में there are two types of budgetary concerns. One is the bottom up, and another is top down. When you talk about bottom up budgetary concern, it would mean that the organization asks each supervisor to indicate the wage change that he or she wants to assign to each employee during the year. Okay, and when you talk about top down, in this approach, an overall amount of change is dictated for the organization as a whole. This change is apportioned to each organizational unit. तो ये हमारे पास दो मेन कंसर्न्स हैं बजट के हवाले से, जिस तरीके से आप एम्प्लॉइज की वेजेस को एलोकेट
वो करोगे. So there are certain budget implementations. The first concern is the company establishes the average merit increase for this year. The second aspect is spreadsheets are distributed to all division heads, listing each employee's current salary and projected salary based on an average increase. The third concern is division heads in consultation with their managers adjust the increases up and down for specific performance differences, keeping in mind the total allowable increase. So budget को मद्देनजर रखकर obviously आप इन तमाम चीजों को प्लान करते हो और obviously ये बात भी for sure है कि आपने जब allocate करना है कोई इंक्रीज या सैलरी या वेज तो उससे पहले आपके पास की रिजल्ट एरियाज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ये तमाम चीजें कैलकुलेटेड फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि एम्प्लॉय क्या परफॉर्म कर रहे हैं और आप उनको क्या पे वो कर रहे हो. So new salary rates are sent to payroll for processing. तो फिर वहां से payroll establishment के जो काम है वो शुरू हो जाते हैं, पेज डेवलप की जाती हैं, सैलरीज का पूरा एक payroll जो schedule है वो डेवलप किया जाता है, जितने टैक्सेस उसमें से डिडक्ट होने होते हैं उन तमाम चीजों को देखा जाता है. उसके अलावा अगर आपकी कोई फर्दर डिडक्शंस एप्लीकेबल हो तो उन तमाम चीजों को भी विजुअलाइज वो किया जाएगा. इसमें आपकी EOBI की पेमेंट हो सकती है, इसमें आपका टैक्स जो सैलरी के ऊपर एम्प्लॉइज को बियर करना है वो आपका हो सकता है. उसके अलावा कोई सुपरएन्युएशन की कटौती वो हो सकती है. देयर कैन बी सर्टेन हेल्थ इंश्योरेंस एस्पेक्ट्स जिसकी डिडक्शन फिर उस सैलरी के पूरे प्रोसेस में वो की जाएगी. So next point we have is timing salary increases. So some give increase once each year, generally establishment parameter yahi establish hota hai, while others give increase on anniversary dates of when employees were hired or placed on the current job. Giving increases at the same time can simplify things considerably in terms of budgeting. ओके सो कोई ना कोई पैरामीटर जो आपकी पॉलिसी में दर्ज होगा इसको एस्टैब्लिश करना आपके लिए जरूरी है. सो न्यू एम्प्लॉइज आर often not eligible for a wage increase for a certain time period such as 6 months. On the other hand, they are given an automatic increase at some similar period depending on organizational policy. तो आपकी पॉलिसी में ये बात सारी दर्ज की जाएगी. फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल ईयर एंड के ऊपर प्लान करना है सैलरी इंक्रीज और फाइनेंशियल ईयर एंड से 2 महीने पहले एक एम्प्लॉय ने अगर आपको ज्वाइन किया तो मे बी फाइनेंशियल ईयर एंड पर आप उसकी वैल्यूएशन अभी नहीं करो, दैट पर्सन वुड बी वैल्यूएटेड नेक्स्ट ईयर. ठीक है. सो वी हैव टू सी कि एक एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो क्या है और उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ आपको इस बात को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कि आपने एक सैलरी में इंक्रीज वो किस वक्त उसके लिए एप्लीकेबल बनाना है. तो यूजुअली एक एम्प्लॉय को उस वक्त वैल्यूएशन में हम लेकर आते हैं जब उसका करंट ईयर का जो वर्किंग है वो 6 माह से ज्यादा का हो. ठीक है. अगर 6 माह से कम की उसकी वर्किंग हो तो हम उसको नेक्स्ट ईयर की वैल्यूएशन में वो पोस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली फिर जो इन पिछले महीनों की जो कमी होगी उसको भी उसमें कंपनसेट वो कुछ ना कुछ वो किया जाएगा. So compensation components communicated to all audience, उसको हम एक नजर देखते हैं. हमारे पास सबसे पहली चीज जो कम्युनिकेट की जाती है एम्प्लॉइज के साथ दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शंस. उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, पे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तमाम चीजें शेयर की जाती हैं एम्प्लॉइज के साथ. उसके अलावा इंसेंटिव प्लान डिजाइन, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, सैलरी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर्स क्या है, उनको कैसे फॉलो किया जाता है, कौन डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑब्वियसली बेनिफिट प्लान्स, ये तमाम चीजें एम्प्लॉइज के साथ शेयर की जाती हैं ताकि वो इस बात को इंश्योर कर सकें कि अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को दिखाने के साथ साथ व्हाट दे वुड बी गेटिंग इन रिटर्न. अब हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू सैलरी कंट्रोल. सबसे पहले हम कंट्रोल मैकेनिज्म को देख रहे हैं. इट सेज दैट द प्रोसेस ऑफ सीइंग that the plans that have been developed are carried out. ठीक है. जो चीज हमने प्लान की थी वो चीज सही वक्त पर सही तौर पर पाए तकमील तक वो पहुंच रही है. So in most organizations you will use a planning and control process to develop a budget that forecasts probable income and expenses.
ओके तो ये तमाम चीजें कैलकुलेट की जाएंगी. देन यू विल कंपेयर दीज बजट्स टू व्हाट अकर्स थ्रू आउट द ईयर टू सी इफ एक्सपेंडिचर्स आर केप्ट अंडर कंट्रोल और वेदर इवेंट्स हैव चेंज्ड द फोरकास्ट्स और नॉट. ठीक है, तो फिर ड्यूरिंग द ईयर भी इस बात को प्लान किया जाएगा कि आपने जो एक्सपेंसेस प्लान किए थे, आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके ऊपर आ रहे हैं, आपने जो एफिशिएंसीज प्लान की थी उनके मुताबिक काम हो रहा है, आपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिलीवरी टाइमिंग्स डिसाइड की थी, क्या वो तमाम सही वक्त पर डिलीवर हो रही हैं, क्या कस्टमर की तरफ से पेमेंट्स आपको रिसीव हो रही हैं. तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रखकर आप अपनी प्लानिंग जो है उसको कंटिन्यूड वे में डेवलप करते रहते हो. सो कंट्रोल इज एन आफ्टर द फैक्ट प्रोसेस, ओके, इन दैट इट रिव्यूज व्हाट वेंट ऑन टू सी इफ इट कंफर्म्ड विद द प्लान और नॉट. ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन डेविएशंस तो फिर हमें उसके ऊपर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स को अप्लाई करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आया उस डेफिशिएंसी की वजह से हमें किस किस्म की कटौतियां, किस किस्म के जो पैरामीटर्स हैं उनको रीएस्टैब्लिश करने की जरूरत है. Now we are looking at certain sample objectives. For example, we need to talk about reduce the expense. So उस केस में right sizing the strength. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास overstaffed लोग हैं तो sometimes you have to reduce your working staff. So restructuring to reduce redundant tiers of hierarchy. बाज़-औक़ात हमें corporate restructuring, business process engineering इस तरह के इक़दाम भी करने पड़ते हैं और बाज़-औक़ात हमें ये देखना पड़ता है कि redundant अगर कहीं पर designations वो डेवलप हो चुकी हैं तो उनको हम एडजस्ट कर सकें. So reduce number of zonal offices and delegate power to make administrative adjustments such as closure of field offices not needed, making adjustments of offices and staff within the zone according to workload. ये तमाम चीजें विजुअलाइज की जाएंगी. Review of vehicle use and entitlement of petrol gas limit in view of reduction of visit. तो इस चीज को भी बड़ा क्रिटिकली देखा जाता है कि हमारे एक्सपेंसेस कहाँ पर हो रहे हैं और उन एक्सपेंसेस में से किन किन चीजों को हम कट शॉर्ट वो कर सकते हैं. So economy in use of telephone through improvement in system. For example, telephone expenses के ऊपर आप लिमिट्स वो लगा सकते हो. So ये तमाम चीजें, व्हीकल का यूजेज, टेलीफोन का यूजेज, इस तरह के जो अदर यूटिलिटी एस्पेक्ट्स हैं, इन तमाम चीजों को क्रिटिकली एनालाइज और विजुअलाइज वो किया जाता है ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोलेबल हवाले से एस्टैब्लिश वो कर सको. सो इसी तरह आपके जो फर्दर इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, दैट कैन बी टू रेगुलेट ट्रैवलिंग, कंट्रोल ओवर टाइम. इन चीजों को भी देखा जाएगा बिकॉज बाज़ औक़ात एम्प्लॉइज वुड बी डिलेइंग द वर्क जस्ट टू गेट द ओवर टाइम. सो ये तमाम चीजें हमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के अंदर वो सोचनी है. इम्प्रूव सिस्टम ऑफ मेडिकल रीइंबर्समेंट टू चेक मिसयूज ऑफ फैसिलिटी. That is important aspect. Make best use of information technology. Set up a joint economy committee of officers and staff to review expenses and suggest ways and means to reduce the same. तो इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमें नजर वो रखनी होगी ताकि हमारे जो पेटी एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो अदर यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, वो सब कंट्रोलेबल रहें और हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज ना कर जाए. Now we have a certain discussion related to the benefits part. When we talk about benefits, तो उसमें जैसे employees old age benefit हम प्रोवाइड करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. सो इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो बेनिफिट की कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्कस किए जाएंगे. सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रॉब्लम्स हैं, तो वी हैव टू फोकस अपॉन द बेनिफिट साइड एज वेल. So purpose of a benefit is to provide facilities to employees, for example, financial and others in order to their life requirements and provide them satisfaction. Benefit may contribute attracting, motivating and retaining ह्यूमन रिसोर्सेज और ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है हमारी रिटेंशन स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन के लिए भी कि हम बेनिफिट्स को ज्यादा अट्रैक्टिव वो डेवलप करें सो दैट द पीपल शुड फील कि अगर वो कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि एक लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स भी उनसे जा रही है. So fringe benefits vary from position to position. तो हर हायरार्की के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के लिए हो सकता है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जो बेनिफिट्स हैं वो ऑफर वो करें.
So why to offer benefits, इसके ऊपर अब हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं. It is said that benefits are necessary for several reasons. For example, they are required by law. जब हम कानूनी तौर पर इस चीज को देखें तो सोशल सिक्योरिटी, EOBI, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, कैंटीन एंड फेयर प्राइस शॉप, ये तमाम चीजें हैं जो लीगली आपको ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर अडॉप्ट वो करनी पड़ेंगी. इसी तरह दे आर डिजायर्ड बाय एम्प्लॉइज डिस्पाइट द फैक्ट दैट एम्प्लॉइज आर ऑफ्टन अनअवेयर ऑफ द ट्रू कॉस्ट एंड एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट्स दे रिसीव. बेनिफिट प्रोग्राम्स आर अ मेजर रिक्रूटिंग टूल. तो बहुत से लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले इस चीज को विजुअलाइज करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से उनको कैसे फायदे वो मिल पाएंगे और उन तमाम फायदों को वो कैसे अपनी जिंदगी के साथ एसोसिएट वो करेंगे. तो ये तमाम चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं टू बी कंसिडर्ड. So they help to develop an atmosphere of trust in the organization. For example, taking care of employees through benefit programs increases the feeling that the relationship between the organization and the individual goes beyond an economic transaction. तो सिर्फ पैसे का लेन देन जिंदगी का मकसद ना रह जाए, बल्कि उसके अलावा भी employees को ये feeling हो कि the organization is taking care of them. ठीक है. तो सैलरी एंड वेज के अलावा बेनिफिट्स जिसमें कि आपका पेट्रोल, मोबाइल, हाउस रेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की फीस, बच्चों की एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन अपना फोकस वो रखती हैं. So they provide more stability in the society. So having health insurance, social security benefits like life insurance, etc., helps the individual and society as a whole. A healthy employee, both physical and mental, is a more productive one. जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जिम्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं, वो योगा सेंटर्स डेवलप करती हैं, वो एम्प्लॉइज को अदर हेल्दी एक्टिविटीज में जिसमें स्पोर्ट्स डिफरेंट तरह की होंगी उनमें इन्वॉल्व करेंगी, सो दैट जो healthy mind is in a healthy body. तो इस चीज के ऊपर फोकस करते हुए the organizations need to see कि एम्प्लॉय की ओवरऑल जिंदगी की जरूरियात क्या हैं, उसकी सेहत के बारे में क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, because eventually they have, if they are healthy enough, so they have to work for the organization. ओके और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सब बेहतर वो हो पाएगी. Okay, so premium savings के ऊपर भी डिस्कशन की जा रही है कि when benefits are purchased on a group basis, costs are typically lower. For example, the premiums for those who have group life insurance are lower than for those who purchase individual plans. So organizations usually go for group life insurance parameters, जहां से उनको ज्यादा benefit वो हो पाता है. तो बहुत से कंसर्न्स में कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस भी हमें देखने हैं और उसके साथ साथ हमें जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि उन सोशल रिस्पांसिबिलिटी एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एम्प्लॉइज के लिए ज्यादा बेहतर कंसर्न्स वो क्या हो सकते हैं जिससे कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये दोनों विन विन रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश वो हो सके. So there is a list, मैं दोबारा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स की, जिसमें EOBI है, सोशल सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुटी, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स, कैंटीन, फेयर प्राइस शॉप, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन. तो these are all the laws जो कि लीगल एस्पेक्ट्स में हमें सोचने हैं, कंसर्न में रखने हैं और इनके मुताबिक अपने तमाम पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एस्टैब्लिश और एलैबोरेट वो करना है. सो EOBI उसकी आपको मैं कुछ डिटेल यहाँ पर बता रहा हूँ. बाकी फर्दर ऑब्वियसली हर साल उनकी पॉलिसीज के अंदर तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं और उसके मुताबिक हम यहाँ पर फिगर्स एंड फैक्ट्स को अपडेट और अपग्रेड वो करेंगे. So for example, contribution की अगर हम बात करें तो employers contribution would be at 5% of the workers minimum wage, which might be 300 per month, and the employee contribution would be 1% of the workers minimum wage, which might be 60 rupees per month. So it all depends कि आपका जो total compensation package plan है उसमें से आपका contribution from the employer side, from the employee side वो कितना ट्रांसफर हो रहा है. सो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे देयर वुड बी समथिंग लाइक 360 per month. No doubt figures and facts can be updated, and since 1986 federal government was contributing an equal amount to that collected from the employers. Okay, so by Finance Act 1995 the law was amended to provide that the federal government may make such contribution to the institution as it may determine from time to time.
ओके, तो इसमें जैसा आपको मैं पहले भी अर्ज कर रहा हूं कि हर साल उनकी पॉलिसीज के अंदर तब्दीली वरूनुमा हो भी सकती है. सो वी हैव टू सी कि जो करंट रेट्स हैं और जो करंट पर्सपेक्टिव्स हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं. बट एनीवे द गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग along with the contributions coming from the employee and an employer at the same time. So when we look at the social security aspects, so there are different institutions जो कि provincial level के ऊपर operate करते हैं. जैसे कि हमारे पंजाब में पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट is there. So अब उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होगी कि वो तमाम जो इंडस्ट्रियल कंसर्न्स हैं उनके साथ इन एसोसिएशन वर्कर्स के लिए जो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं बेहतर से बेहतर उनको वो प्लान करें. So an ordinance to introduce a scheme for providing benefits to certain employees or their dependents in the event of sickness, maternity, employment injury or death. In tamam concerns ke andar social security is a big security given to the workforce. इसमें भी यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो रेट्स यहाँ पर मेंशन है दे कैन बी अपडेटेड. सो द नॉर्मल स्कीम कैन बी दैट द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज एट 6% up to 10,000 rupees. Self assessment schemes would be employers contribution would be 360 per month per employee. Employee contribution can be 20 rupees per month and the total contribution would be 380 rupees per month. So again इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी, ये रेट्स इनके अंदर अपग्रेडेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम ईयरली बेसिस पर आर पॉसिबल. लाइकवाइज वर्कर्स वेलफेयर फंड 1971 को हम देख रहे हैं. इसमें एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात की जा रही है. फॉर एग्जांपल फ्री एजुकेशन अप टू मैट्रिक लेवल एट 38 स्कूल्स कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर द कंट्री. इनके अंदर आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है. रेगुलरली अवॉर्डेड टू द टैलेंटेड चिल्ड्रन ऑफ वर्कर्स स्टडिंग इन FSc or up to MSc, besides medical and engineering colleges, universities and or any other recognized professional postgraduate institute. तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन वर्कर के बच्चों को वो दी जाती हैं. Annually 10 scholarships are approved for institutions like NUST, IBA, LUMS, GIK Institute, cover all costs of admission, boarding, lodging and tuition fee. ये बहुत बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. And 10 foreign scholarships are also approved annually for higher studies, science subjects on open merit. So तमाम चीजें वर्कर्स वेलफेयर फंड 1971 के तहत आर पॉसिबल. इसके अलावा डेथ ग्रांट, जिसमें के फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड वर्कर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विद 300,000 रुपीस एज ए ग्रांट. अगेन दैट इज कमिंग फ्रॉम द लीगल एस्पेक्ट्स. इसी तरह मैरिज ग्रांट में मैरिज ग्रांट एट द रेट ऑफ 50,000 रुपीस पर वर्कर इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स. तो ये तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं हमें वर्कर्स वेलफेयर फंड 1971 के तहत अवेलेबल हो सकते हैं. इसी तरह वर्कर्स वेलफेयर फंड में हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड वर्कर्स वेलफेयर हॉस्पिटल, किडनी सेंटर्स, इनकी एस्टैब्लिशमेंट और उनकी सर्विसेज की प्रोविजन, हाउसिंग सेक्टर के हवाले से प्लॉट्स डेवलप्ड एंड फ्लैट्स हाउसेज कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोविंशियल बोर्ड्स ऑफ वर्कर्स वेलफेयर फंड फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनके ऊपर बहुत वर्किंग वो हुई. इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राईसाइकिल्स के ऊपर भी बात की गई कि 350 ट्राईसाइकिल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन केस टू केस बेसिस अमंग द वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स हु आर अनएबल टू वॉक. तो ये एक फैसिलिटी मजीद गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ अदवार में ऑफर की जाती रही हैं. So distribution of stitching machines, distribution of bicycles. So these are all the things जिनके बारे में government is always conscious and they are trying to facilitate the workers. Likewise, there is a West Pakistan Canteen Rules 1959. According to that, applicable to factory employing more than 250 workers, canteen shall be at least 50 feet away from the latrines or urinals, dust areas and smoke areas. Canteen shall contain at least a dining hall, kitchen, storeroom, washing place and utensils. Minimum height of building shall not be less than 12 feet. Walls, roof shall be waterproof, adequate ventilation, sufficient lighting, hygiene वहां पर maintain की जाए. So hygienic environment में काम वहां पर हो. So ये सब तमाम चीजें वेस्ट पाकिस्तान कैंटीन रूल्स 1959 के तहत एप्लीकेबल हैं. So dining room shall accommodate at least 30% of the workers at a time, ताकि वहां पर congestion और suffocation वो ना हो और overstaff, overwork, over जो population है वो इस एरिया में created ना हो.
So food, drinks and other items served shall be sold on non-profit basis. Display of rates of food items भी जरूरी है, of sufficient stock. इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी, इसके ऊपर भी गौर किया जाएगा और फंक्शंस ऑफ अ मैनेजिंग कमेटी, इन तमाम चीजों को मद्देनजर वो रखा जाएगा. Likewise, Punjab Fair Price Shops Ordinance 1971 is also there. According to this law, establishment of fair price shop like वो होनी चाहिए, keeping of sufficient stock उसपे मौजूद हो, display of list of fair prices, purchase of essential articles, sale of essential articles जिसमें के wheat, आटा, sugar, pulses, vegetable ghee, rice, coarse cloth, laundry soap, kerosene oil, tea, gur, safety matches, electric lamps, oil stoves, biscuits, salt, cold drinks, packed masala, etc. ये तमाम चीजें, all spices और ये तमाम चीजें जो हैं वहां पर available वो होनी चाहिए. So Constitution of Managing Committee वहां पर भी required होगी, जिसका function of a managing committee के पूरे procedures और policies वो defined होंगे. Monthly quota for a worker ये भी define किया जाएगा. Workers card issue किया जाएगा for essential items and purchase of articles on credit basis भी वहां पर मुमकिन की जानी चाहिए. तो ये तमाम इकदामात जो हैं they are legally required as per the Punjab Fair Price Shops Ordinance 1971. इसी तरह ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जिक्र भी किया जा रहा है कि द एम्प्लॉयर शैल हैव ऑल द परमानेंट वर्कमैन एम्प्लॉयड बाय हिम इंश्योर्ड अगेंस्ट डेथ एंड इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ contingencies not covered by the Workmen Compensation Act 1923. Okay, likewise bonuses के बारे में establishment workers के हवाले से वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 को भी हम देखते हैं. इट सेज दैट अंडर दिस एक्ट द एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन टू वर्कर्स फॉर एक्सीडेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. द रेट्स for compensation for death, permanent total disablement, permanent partial disablement and temporary disablement have been given in the act. तो ये तमाम चीजें हैं जिनके बारे में पता होना वो जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि वो लीगल कंप्लायंस के साथ एक इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट, एक मार्केट के अंदर ऑपरेट वो करें. इसी तरह व्हाट अदर बेनिफिट्स शुड यू ऑफर, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो हियर आर सम ऑफ द मोर पॉपुलर बेनिफिट्स, इनको हम एक नजर देखते हैं. नंबर 1, इट कैन बी द automobiles, it can be the cafeteria facility as we already talked about. इसी तरह paid club membership जिसमें के एथलेटिक क्लब्स फॉर एम्प्लॉइज, गोल्फ क्लब्स फॉर एग्जीक्यूटिव्स, इसके ऊपर बात की जा सकती है. एजुकेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है. ट्रांसपोर्टेशन, आपके वर्क क्लोथ्स, फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल्स, टेलीकम्यूटिंग प्रिविलेजेस, पेड टाइम ऑफ, फेयर प्राइस शॉप्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, नो और लो इंटरेस्ट लोन्स. तो ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो कि ओवरऑल एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए वो काम करेंगे. और अगर हम एम्प्लॉइज को कंपनसेट कर रहे हैं अप्रोप्रिएटली, हम उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं competitively, तो obviously as a return they can be working for the organization in a more dedication, they will be more engaged and involved, they will be more participating, they will be more enthusiastic, they will be more motivated. और उस सारे का फायदा इवेंचुअली आ जाकर ऑर्गेनाइजेशन को ही होना है, बिकॉज उससे उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अबव एवरेज रिटर्न ये सब कुछ इंश्योर वो हो पाएगा. Likewise, there is also a concern which is known as flexible benefits, इसको cafeteria benefits भी हम कहते हैं. Flexible benefit और cafeteria benefits is just like menu of benefits, जिसमें हम एक list provide कर देते हैं जिसमें कि employees अपनी मर्जी के मुताबिक benefits को pick और opt वो कर सकते हैं. So a plan that allows employees to select the benefits they prefer from groups of benefits established by the employer. For example, elder employees may be more interested in pension or healthcare scheme, while younger employees may be interested in holidays with pay or bonuses. So we have to be careful in establishing all these benefits because these benefits are either given to the employees as legal aspect or as a commitment aspect from the organization. Okay, so वो rights जो हैं उनको appropriately communicate करना
और ऑब्वियसली उसके साथ आप एसोसिएट करोगे परफॉर्मेंस को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि विदाउट परफॉर्मेंस यू माइट नॉट बी एलोकेटिंग एनी ऑफ द बेनिफिट्स। ओके, सो टू एस्टैब्लिश अ मेरिट, to make the employees realize that they have to contribute to reach to those benefits, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो रीजंस फॉर यूजिंग फ्लेक्स बेनिफिट्स अगर हम देखें तो उसमें हमें फायदा ये मिलता है कि परसीव्ड वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स डिपेंड ऑन एम्प्लॉइज एज, फैमिली स्टेटस एक्सेट्रा। फ्लेक्स प्लान highlight basically employees awareness of the costs and value of benefits offered. Okay, so that is the reason कि हम फ्लेक्स बेनिफिट से एक फ्लेक्सिबल स्कीम अपनी एस्टैब्लिश कर लेते हैं ताकि हर एम्प्लॉय अपनी जरूरत के मुताबिक एक मेन्यू लाइक लिस्ट में से पिक कर सके व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। इसी तरह there are sometimes problems with flexible benefits and the problems can be number one, inappropriate benefits package choices. It can be adverse use of specific benefits by higher risk employees and administrative and communication efforts. ये तमाम चीजें हैं जो कि associated होंगी आपके flexible benefits के साथ। So organizations के लिए जरूरी है कि वो strategic benefits planning वो करें। उस मकसद के लिए to carry out strategic planning, your organization must employees related all the data you should be collecting, design a benefit program, control cost and administer the program. और ये बात आगे मैं इसमें एम्फसिस करता चलूं कि कोई भी बेनिफिट तक रसाई, किसी भी बेनिफिट तक रसाई वो आप एज ए वर्कर नहीं कर पाओगे इफ यू आर नॉट कमिंग अप विद द राइट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और इन चीजों के बारे में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पैरामीटर्स एस्टैब्लिश करना वो जरूरी है। Otherwise, it should not be happening that employees should be taking it as their right to avail that benefit. Okay, so right, obviously हम उनको provide तभी कर पाएंगे when we are coming up with the right level of performance as well. ठीक है, और उसके लिए भी आपके लिए जो एक feasible option हो सकती है that is that you can set up the merit. Okay, उसके साथ आप associate करोगे अपने तमाम तर compensation and benefit aspects को। लेकिन कुछ चीजें जो लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, इस किस्म के जो फैक्टर्स हैं वो ऑब्वियसली दे वुड बी केप्ट कांस्टेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। ठीक है, सो टाइम टू रीडू बेनिफिट्स, अब हम एक नजर देख लेते हैं। बाज़ औक़ात आप अपने बेनिफिट पैकेज प्लान्स को रिवाइज भी करते हो, दैट इज समटाइम्स ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशंस। जैसे हमारे पास एक बड़ी लाइव एग्जांपल इसकी मौजूद है इन द पास्ट अबाउट 1 ईयर जो हमने पेंडेमिक की सिचुएशन देखी जिसमें कि बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे सफर्ड अ लॉट, बहुत से वर्कफोर्स जो थी दे वर आउट ऑफ द जॉब्स। सो उससे इकोनॉमिक डाउनटर्न हमें नजर आए और उन इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान अब किस तरीके से आपने अपने एम्प्लॉइज को कंपनसेट करना है। इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है, आपने एम्प्लॉइज को कैसे कंपनसेट करना है, पर कैपिटा इनकम में तब्दीली रूनुमा हो रही है, आपके वैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी अकर कर रही है, आपके टैक्सेस एंड टैरिफ्स में तब्दीलियां रूनुमा कर रही हैं, गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स एंड लॉज के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, रेगुलेटरी बॉडीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तब्दील हो रही हैं। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारे वेरिएबल्स को, अनसर्टेनिटीज को, कॉम्प्लेक्सिटीज को इकोनॉमिक कंसर्न्स में देखने के बाद ही आप फाइनलाइज करते हो कि नेक्स्ट माली साल के लिए हमारे पास जो पॉलिसी स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से ऑपरेशनल होगा। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि एक माली साल के पूरा होने से पहले ही कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का हमें ऐसा सामना करना पड़े कि वी ऑल्सो नीड टू रिवाइज द पैकेज प्लान्स इन बिटवीन द टाइम। इसी तरह complaints and departures can be the time to redo the benefits. For example, increased turnover may signal that your benefit program is no longer competitive. ठीक है, अगर आपकी कंपनी को, फैक्ट्री को, कारखाने को, ऑर्गेनाइजेशन को लोग छोड़कर जा रहे हैं तो आपका हो सकता है कि रिटेंशन पॉलिसी इज नॉट गुड। और रिटेंशन पॉलिसी में वन ऑफ द मेजर टूल्स वी हैव इज द बेनिफिट पैकेज प्लान। सो अगर आपका बेनिफिट पैकेज प्लान अप्रोप्रिएटली डिजाइंड नहीं है तो लोग वुड बी लिविंग, द कंपेटिटर वुड बी हैविंग द ऑप्शन टू गो फॉर एम्प्लॉय पाउचिंग, और ऑब्वियसली वो कुछ पैसे, कुछ बेनिफिट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स ज्यादा ऑफर करके आपका टैलेंटेड वर्कफोर्स को, आपके टैलेंट पूल को वो एक्वायर करने की कोशिश, वो रिक्रूट करने की कोशिश वो करेंगे। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम अपने पैकेज प्लान को इस तरीके से एस्टैब्लिश करें कि दैट शुड बी अ गुड मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉइज टू स्टे एंड वर्क।
ओके इसी तरह चेंज इन डेमोग्राफिक्स आ सकती हैं, मीन योर पैकेज डज नॉट सर्व योर करंट पॉपुलेशन। सो आपने जो पैकेज प्लान डेवलप किया हुआ था दैट वाज फॉर द सीनियर citizens, आपके पास ज्यादा जो लोग थे they were old people, and with the passage of time the old people have been replaced by the youngsters. तो youngsters की जो requirements होंगी that would be very different from the older generation. That is the reason कि हमें जो generation perspectives हैं उनमें बहुत clearly सोचना होगा जब हम एक benefit package plan establish करते हैं. For example, बेबी बूमर्स, बेबी बस्टर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, मिलेनियल्स, इन सब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. और एक पैकेज प्लान जो हम जनरेशन एक्स को प्रोवाइड कर रहे हैं दैट पैकेज प्लान माइट नॉट बी एप्लीकेबल फॉर जनरेशन वाई, दैट माइट नॉट बी एप्लीकेबल फॉर बेबी बूमर्स एंड बेबी बस्टर्स. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास वर्क फोर्स किस एज ग्रुप की मौजूद है और उस वर्क फोर्स के डेमोग्राफिक्स के हवाले से उस वर्क फोर्स के अदर जो कंसर्न्स हैं, इट कैन बी इवन द रिलीजन. For example, if a Muslim is looking for a holiday on Friday, so a Christian might be looking for a holiday on Sunday. Okay, so different perspectives में different regional, different cultural perspectives को भी वो हमें सोचना पड़ेगा जब हम एक पैकेज प्लान डेवलप वो कर रहे हैं. तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर जो चेंज इन डेमोग्राफिक्स हैं इन सबको विजुअलाइज करना है सो दैट आप अप्रोप्रिएट पैकेज प्लान एस्टैब्लिश वो कर सको. इसी तरह चेंज में नॉट बी द आंसर ऑलवेज. ओके सो लुक हाउ बेनिफिट्स आर यूज्ड, सर्विसेज फॉर बेनिफिट्स. अब इन चीजों को भी आपको मद्देनजर रखना है और आपको ये चीज देखनी है कि जो बेनिफिट्स आपने डिजाइन किए हैं उन बेनिफिट्स के हवाले से आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, जो प्रोसीजरल जस्टिस है, उसके तमाम तर पैमाने भी इस्टेब्लिश्ड हो. फेयरनेस के जो एस्पेक्ट है वो आप बुरे कार ला सको, एथिकल कंसिडरेशंस वो वहां पर इंप्लीमेंटेड हो. तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर आपको उन बेनिफिट्स को प्लान करना है, बेनिफिट्स को ऑफर करना है. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली उन बेनिफिट्स के अंदर कोई तब्दीली रूनुमा वो हो भी सकती है. So that is the end of this chapter. Please join the next Zoom meeting for the next part.